our DMD and Chief Financial Officer is present. Mr. Mohammed Ghan, our Financial Controller, DGM Finance is present. Mr. Mohammed Shahzad, our Manager, MIS and Budgeting is present. I'm the Company Secretary, Shahzad Aminullah, and with us over here is also Shayam Satri, who's our Assistant Company Secretary, and of course our IT support, Mr. Omar. Over to you, Madam. Screen share, the screen share. Thank you. Very good. Bismillahirrahmanirrahim. We'll start off with a short presentation. First of all, this is the corporate profile of the Pakistan Refinery. This gives us the satellite view of the company and the operational network, as most of you would have seen in our annual report as well. This operational network shows the integration of the refinery with the port and with the supply logistics. The refinery is connected with the port as well. It is connected with the supplier terminals, both at Kemari, and we also have gantries, and we are also connected with Pakistan International Karachi Jinnah Terminal. And then we have a spur line that is connected with the upcountry pipeline. And then we can move forward. Next slide. This is a snapshot of annual results. As you all know that this corporate briefing session is primarily for the annual results of 2025. This shows that Thank you. This shows that the company incurred a loss after taxation of 4.6 billion last year, against the profit of 4 billion in the year ended 2024. Well, the main reason was the depressed refining margins in the pricing and global depressed refining margins that resulted in losses. Well, as you have seen yesterday that we have already announced the quarterly results, those depressed refining margins have the trend has reversed somewhat, and the refinery has earned a profit of 1 billion. And this chart on the right, this shows the trend of our revenues and profitability over the last 5 years. And, this is the balance sheet of refinery. As you can see that due to the losses, the accumulated losses number has increased. Can we screen it? Can we? Yes, the accumulated losses or the net equity position have reduced from 29 billion to 26 billion. The main reason was the losses that the company suffered in the year. And other items are already there. You have already seen that in our annual report. And we can answer any questions if there are. And move on. This slide shows the achievements of the refinery that the company achieved in the 2024-25. First of all, is the HSD production. The company produced 796,000 metric tons of HSD, which is the highest ever production of PRL in the history. We are talking about this last 60 years of operations. It was the highest ever production. And the second highest was 670,000. So we beat that milestone by a good 100,000 tons. So, and second is the MS production. Last year, the MS production was almost touching 300,000 tons, which is also the highest in the history. And then we'll talk about the refinery expansion upgrade project. The FEED for the project was completed in December of 2024. And then we moved forward and we issued the ITBs, and we successfully received the bids from potential EPCF contractors towards the end of the year. This is a snapshot of key numbers. As you can see that the profits and gross and net profit have come down. Net sales have increased, as you already know that we achieved the highest ever production. And then the current ratio for the year also increased from 1.04 to 1.06. This slide shows the intake and production. Our primary reliance is on Middle Eastern crudes. As you can see that the major portion, almost 70% of the crude that the refinery process were from ADNOC, which is the Abu Dhabi National Oil Company, and then 20% of crudes were procured from Aramco,
which is this Arabian oil company, Saudi Arabian oil company, and then 10% local crude was processed. In terms of production, our mainstay has been the HSD, which is 47%, and then MS, which is petrol, it was 17% of the total production, and furnace oil is 24%. You can also see that in comparison to 2024, the furnace oil production, we have brought it down from 27% to 24%. So it was the big production achievement. And then others, which includes kerosene, jet, LPG, and that accounted for 12% of total production. We have also included a slide that shows the results of the first quarter that only came out yesterday. The company Alhamdulillah posted a profit of 1 billion, as in comparative last year, September. There was a loss of 2.3 billion. As I said earlier, that the margins have recovered from the low of last year. That resulted in the profits during the year. This is the short presentation. The question is, the floor is open now for question and answers. Yeah, You have to try with this. Abdul Moisa. Abdul Moisa, Ask one. Okay. Moisa, floor is with you. अब्दुल मोइज साहब आपको आवाज आ रही है? Let's move to the next person. Then we just waste time like this. Sorry, we can't hear you, and we are asking now Miss Samia Mukhtar. Ask to unmute here. already clicked the ask to. But yeah, My problem. question is, what is your outlook on the refining margins going forward? और दूसरा अपनी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के ऊपर भी बताइएगा कि ड्यूरिंग दिस क्वार्टर आपकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कैसी Sorry, रही है? Samia, before you go any further, can you please कि आप प्लीज दोबारा से सवाल कर लें, आपकी शुरू में आवाज नहीं थी आ रही, प्लीज स्टार्ट अगेन. मेरा सवाल ये है कि मेरा सवाल ये है कि रिफाइनिंग मार्जिन्स को नेक्स्ट 6-9 मंथ्स में आप कैसे देखते हैं? दूसरा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के ऊपर भी अपना एक व्यू पॉइंट दे दीजिएगा. आई थिंक सितंबर से प्लांट फुली ऑपरेशनल था, इसके ऊपर भी क्लैरिटी दे दीजिएगा. देखिए, ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है कि आप रिफाइनिंग मार्जिन्स को कैसे दें. मेरी आवाज आ रही है आपको? देखिए, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, एज फार एज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज कंसर्न, हमारी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है वो इट रिमेन बिटवीन 80 to 85%. So which is a very good number because आपको 100% के लिए आपको HSF को आपको हैवियर क्रूड पे जाना पड़ता है, एंड देन इफेक्टिवली जो है वो HSF को प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा हो जाती है और आपके जो मार्जिन्स हैं वो रिड्यूस हो जाती है. So last year a very good capacity utilization. As far as the margins are concerned, the last year the margins have been low. ये जो क्वार्टर हमने अभी कंप्लीट किया है, the margins are relatively a lot better than the last year. Moving forward, apparently जो अक्टूबर का महीना है उसमें मार्जिन ठीक लग रहे हैं. However, I mean, it is extremely difficult to predict कि वो मार्जिन कैसे रहेंगे, क्योंकि ये जो मार्जिन्स हैं ये इंटरनेशनल सप्लाई और डिमांड पे काम कर रहे होते हैं. जियो पोलिटिकल सूरत हाल कैसी होती है, दुनिया में जंगें कितनी हो रही हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रूट कितना है, अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स कितने हैं. तो इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू predict the margins. Now हम क्या कर सकते हैं? Effectively, as far as the refineries are concerned, refineries को क्या करना चाहिए as far as GRM को increase करने के लिए? देखें,
जैसे जैसे हमने ये कहा कि हमारे अगर आप हमारी प्रोडक्शन स्लेट को देखें, तो प्रोडक्शन स्लेट जो है वो उसमें कुछ नेगेटिव मार्जिन प्रोडक्ट्स हैं और कुछ पॉजिटिव मार्जिन प्रोडक्ट्स हैं। जो नेगेटिव मार्जिन प्रोडक्ट्स हैं वो HSFO है, फर्नेस ऑयल है, और जो पॉजिटिव मार्जिन प्रोडक्ट है, जो सबसे पॉजिटिव मार्जिन प्रोडक्ट है वो आपका डीजल है, और उसके बाद MS है। तो द मोर प्रोडक्ट्स दैट यू प्रोड्यूस, जो पॉजिटिव मार्जिन प्रोडक्ट्स को ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, आप इफेक्टिवली आपके GRMs बढ़ जाएंगे। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड वी इन द लास्ट ईयर। जैसे नुमान ने आपको बताया कि आपने 8 लाख टन डीजल बनाया है, और उसका उसका मकसद यही था कि हम, अगर ये हम 8 लाख टन डीजल ना बनाते, तो हमारा ये जो जो लॉस है, जो इस वक्त आपको नजर आ रहा है, इससे कहीं ज्यादा आपको लॉस नजर आता। इसी तरह MS। तो हमारा फोकस अभी भी यही है कि हम डीजल को और MS की प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, फर्नेस ऑयल की प्रोडक्शन को कम करेंगे, और इससे जो है वट जो मार्जिन होंगे हमारे बढ़ेंगे। इंटरनेशनल मार्जिन्स को जो है, इंटरनेशनल क्रैक्स को जो है वो हम इम्पैक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी एफिशिएंसीज को बढ़ा सकते हैं मार्जिन्स इंप्रूव करने के लिए। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग। Thank you. Next is Abdul Moisa. Can you please, this is the second chance you are getting. Let's move to the अस्सलाम वालेकुम sir, this is Mohammed Fazil from- Fazil. हेलो आवाज आ रही है? जी सर, दिस इज फजील फ्रॉम प्रोवाइडर्स कैपिटल। सर मेरे एक उनको पहले अपनी साहब ऑफ कर म्यूट कर दें, एक ऑपरेट करें। ये फजील साहब, ओवर टू यू। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरे एक दो क्वेश्चन थे रिगार्डिंग स्लेट। सर जैसे जैसे मेरी अंडरस्टैंडिंग बेसिकली ये है कि अगर आप रिफाइनरी को 100% जो है यूटिलाइजेशन पे चलाते हैं, तो जिसकी वजह से फर्नेस ऑयल आप ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, तो एक ऑप्टिमल लेवल होता है, आई थिंक 50-60% पे आप लोग चलाते हैं, तो जिसकी वजह से एक ऑप्टिमल GRM आप लोग ऑब्टेन करते हैं। तो क्या सर ये यूटिलाइजेशन से क्या जो स्लेट होता है रिफाइनरी का वो भी चेंज हो सकता है, या ये बिल्कुल स्टैटिक होता है, या ये इसमें थोड़ी बहुत वेरिएशन आ सकती है? सर एक मेरा क्वेश्चन ये है सर, अगर मैं 1 बाय 1 कर लूं। हाँ, पहले ये देखें, जो यूटिलाइजेशन से स्लेट जो है वो चेंज हो जाएगा। ना सिर्फ स्लेट चेंज हो जाएगा, बल्कि यील्ड्स भी चेंज हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप हेवियर क्रूड पे जाएंगे, तो आपकी यील्ड्स बदल जाएंगी, जी। तो आपका फर्नेस ऑयल जो है बढ़ जाएगा और डीजल आपका कम हो जाएगा। तो आपने ये ठीक कहा कि वो ऑप्टिमम एक लेवल है जो कि हम उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं, और हमारे केस में दैट ऑप्टिमम लेवल डिपेंड करता है कि आप कौन सी क्रूड रेसिपी इस्तेमाल कर रहे हैं। सो द क्रूड को, जो कौन सा क्रूड इस्तेमाल करना है, आपने अभी अखबारों में पढ़ा होगा, और हमने बोनी लाइट हमने इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बोनी लाइट इज अ क्रूड जिसमें जिसमें डीजल की जो है वो क्वांटिटी ज्यादा है। सो व्हेन यू यूज बोनी लाइट, ऑब्वियसली वो महंगा है, तो वी हैव टू सी कि वो उसकी कमर्शियल वायबिलिटी कैसे बनती है। तो डिपेंडिंग अपॉन द क्रूड एंड इट्स यील्ड्स, आप जो है वो यूटिलाइजेशन को मैक्सिमम यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं, या लेट्स से ऑप्टिमम यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं। अब दूसरा सवाल कर लें। जी सर, दूसरा मैं ये इस पे आपसे ऐड ऑन करना चाहूंगा, लेकिन सर बहुत ज्यादा वेरिएशन तो नहीं होगी ना स्टेक, मतलब जो स्लेट है उसके अंदर बहुत ज्यादा वेरिएशन तो नहीं आएगी ना? मतलब अगर आप रिगार्डिंग बहुत ज्यादा नहीं आती, लेकिन अगर आप 80-85% पे जो है वो यूटिलाइजेशन पे कर रहे हैं, तो आपको परसेंटेज वाइज बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, शायद 2-3% का फर्क पड़ जाता। ठीक है सर, गॉट इट। अच्छा सर, दूसरा क्वेश्चन मेरा रिगार्डिंग रिफाइनरी अपग्रेडेशन जो जो वो है प्रोजेक्ट है, जैसे PRL ने साइन किया हुआ है, उसके हवाले से पूछना सर कि ये चीज़ तो काफ़ी टाइम से 2 साल से अभी एक इशू बन चुका है, तो इस पे क्या लॉबी कर रही हैं रिफाइनरीज गवर्नमेंट के साथ, और वो किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, और आप लोग कितने होपफुल हैं उसके अंदर कि उसमें कुछ जो है ना कोई, क्योंकि IMF की रिस्ट्रिक्शन भी है,
जैसे अभी बातें हो रही थी कि सेल्स टैक्स लगा देंगे या कुछ इस तरीके से कर देंगे, तो उसमें मतलब अभी तक उसकी उसकी थोड़ी सी आप मुझे बता सकें अगर प्रोग्रेस क्या है अभी? देखिए, द मेन इशू जो अभी अभी आउटस्टैंडिंग है ना, वो सेल्स टैक्स का इशू। और गवर्नमेंट अंडरस्टैंड करती है, और गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू फाइंड अ सोल्यूशन। सेल्स टैक्स को हमने कैसे इसको हैंडल करना। आपने ये देखा कि 2024-25 में उन्होंने सेल्स टैक्स पूरे का पूरा साल जो है ना वो हमको नहीं दिया था, लेकिन इफेक्टिवली उन्होंने फिर एक एक फैसला कर लिया कि ये जो 2024-25 का सेल्स टैक्स है, ये आपको 25-26 में मिल जाएगा, और वो इस वक्त हमें मिलना शुरू हो गया है। So effectively they realize कि ये सेल्स टैक्स, however उन्होंने इसका परमानेंट इलाज नहीं किया अभी तक। तो उन्होंने 1 साल का इलाज कर दिया था, लेकिन उसको परमानेंट इलाज नहीं किया। हमारा ये ख्याल ये है कि सूनर और लेटर इसको परमानेंटली इलाज इसका कर दिया जाएगा। वी आर इन टच विद द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट से हम जो है वो इस वक्त राब्ते में हैं, हम सब तमाम रिफाइनरीज, और हम रिफाइनरी पॉलिसी की रिवीजन पे काम कर रहे हैं। तो देर आर सर्टन प्रपोजल्स जिसको जो कि इस मसले को हल कर देंगे, और वंस देयर द एग्रीमेंट इज रीच बिटवीन द रिफाइनरीज एंड द गवर्नमेंट, होपफुली ये मसला जो है वो परमानेंटली हल हो जाए। सर वैसे Thank आदिल you. साहब कह रहे थे कि 10 से 15% कॉस्ट बढ़ जाएगी, वकील तो आप साहब। लोगों की कितनी कॉस्ट बढ़ जाएगी? बस ये लास्ट क्वेश्चन सर, ये बता दीजिएगा। देखिए 10 से 15% कॉस्ट, सर देखिए 10 से 15% कॉस्ट उस वक्त बढ़ेगी अगर ये जब मसला सेल्स टैक्स का मसला हल नहीं होगा। तो तो जब सेल्स टैक्स का मसला हल हो जाएगा तो फिर ये कॉस्ट नहीं पड़ेगी। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। हाँ, Thank you. अस्सलाम वालेकुम। वकील साहब आप अपना जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल माय क्वेश्चन इज कि करंटली सर जो फर्स्ट क्वार्टर में जीआरएम क्या रहे थे और FY25 में जीआरएम क्या रहे थे, पहला क्वेश्चन यही है सर। सेकेंडली सर, एक्चुअली ड्यूटी स्ट्रक्चर इस वक्त क्रूड ऑयल का और एमएक्स का और हाई स्पीड डीजल का क्या है, और थर्ड वन है कि क्या कोई शेड्यूल मेंटेनेंस FY26 में आप लोगों का है। यही 3 क्वेश्चन है। देखिए शेड्यूल मेंटेनेंस तो हमारा जो है वो फर्स्ट क्वार्टर में हो गया है। सो द रेस्ट ऑफ द ईयर में अभी कोई शेड्यूल मेंटेनेंस नहीं। सो एक तो ये बात है। जो आप ड्यूटी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, देखें क्रूड का ड्यूटी स्ट्रक्चर ये है कि क्रूड पे 5% आप कस्टम ड्यूटी देते हैं, लेकिन यू आर सपोज टू रिकवर दैट क्रूड की जो ड्यूटी है थ्रू डिफरेंट मैकेनिज्म। सो इफेक्टिवली जो नेट इम्पैक्ट है ना वो नहीं होना चाहिए। जो प्रोडक्ट पे है वो तो 10% एमएस पे है, 10% डीजल पे है, जिसमें से डीजल पे हमें जो है ना इस वक्त बाकी रिफाइनरीज को 7.5% रिटेन करने की इजाजत है, और हमें भी। और उससे जो ऊपर वाला है 2.5% और 10% एमएस का है, वो एस्क्रो अकाउंट में जा रहा है बिकॉज हमने उसको साइन कर दिया। बाकी तीसरी बात आप डीआरएम के सवाल पूछे थे। डीआरएम जो अभी नुमानी प्रेजेंटेशन आपको दिखाई थी कि डीआरएम हैव इम्प्रूव्ड इन दिस फर्स्ट क्वार्टर। तो वो तकरीबन आप ये समझिए कि हमारे जो पॉजिटिव नंबर आया था, हमारा जो इस क्वार्टर में हमने क्लोज किया है डीआरएम, हमारे तमाम एफर्ट्स की वजह से जो है वी वर एबल टू हैव अ डीआरएम ऑफ $5। ठीक है और जी। सर फिस्कल ईयर और हाँ, फिर कुछ FY25 में कितना था सर? FY25 में कितना था सर, ये बता दें। और सर एक 25 ये जो था कि पिछला साल सर गुजर गया, आपने, उसकी बात करें। जी जी जी, और सर इसके अलावा यूएस से आप लोगों ने सैंपल मंगवाया है उसमें क्रूड ऑयल का, सर उसके बारे में भी कुछ बता दें। नहीं, हमने नहीं मंगाया। हमने यूएस से कोई ओके क्रूड के सैंपल्स नहीं मंगाए, तो सिर्फ मंगवाए। वी आर नॉट द वंस हु ओके हैव आस्क्ड फॉर एनी दिस। ठीक है, थैंक यू। फरहान महमूद सर। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक अच्छा ठाक है? सॉरी, अब्दुल साहब का एक सवाल था कि फरहान साहब इधर एक मिनट में, अब्दुल साहब का एक सवाल रह गया था कि उन्होंने पूछा कि व्हाट वाज द जीआरएम फॉर द ईयर फाइनेंशियल 25। वी हैव द जीआरएम ऑफ अबाउट $1.5 पर बैरल। अब उसको $2 ओके तक, 1.5 से $2 के बीच में रहा था। This was the GRM that we had in the financial year 2025. जी, thank you अकील साहब। फरहान साहब, over to you. ओके।
जी शुक्रिया। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये कि कुछ डेवलपमेंट्स हुई थी अभी रिसेंटली मिडिल ईस्ट के अंदर, और ये भी बात आ रही थी कि शायद मिडिल ईस्ट जो है वो थोड़ा इंटरेस्टेड है रिफाइनरी सेक्टर में। तो पीआरएल के हवाले से कोई इस पे कुछ हो सकता है कि कोई न्यूज आगे जाके कि आप देखें कि स्टेक कोई, क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट है बहुत, अगर कोई स्पॉन्सर्स दूसरा आता है, पहले भी शायद आप लोग डिस्कस करते रहे, तो अभी तक कोई इल्म है इसके बारे में कुछ? ये सबसे ज्यादा इनको पीआरएल को योगा इस मामले में कि क्या मामला है, क्योंकि पीआरएल का प्रोजेक्ट ही जो है वो सबसे मेच्योर्ड स्टेज पे है as far as refining projects are concerned, upgrade projects are concerned. So yes, you are right. जी तब अगर पीछे से बैकड्रॉप से आवाज आ रही तो उसमें मैं आपके सवाल पूरा जवाब भी दे पा रहा, लेकिन बहरहाल कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, देखिए देयर आर डिस्कशंस गोइंग ऑन विद प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स जिनका ताल्लुक जिस तरह आप कह रहे हैं मिडिल ईस्ट से भी है, तो हम तो अभी इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। और ये आपको पता है कि मतलब ये कोई ओवरनाइट तो कोई भी चीज नहीं होती। जियोपॉलिटिकल एनालिसिस, रिफाइनिंग सेक्टर के अपने चैलेंजेस, not everyone will be willing to come to refining sector. There are people, of course, only with background will be coming and showing interest. So yes, it's an ongoing process. We are keeping our fingers crossed. It's a challenge, but inshallah, we will be successful. अहमद हसन साहब, एक मिनट, फरहान साहब आपको जो भी सवाल था, फरहान साहब अनम्यूट की हुआ है भाई, फरहान साहब। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो, आपका हेलो जी फरहान साहब, आपको हेलो कोई और सवाल भी था? जी हाँ, बस मेरा एक सवाल था कि आप लोग ये बोनी लाइट क्रूड भी ले रहे हैं। अच्छा, इसकी प्राइस जो है वो गालिबन बहुत ऊपर होती है, मतलब मेरे ख्याल में $9-10 ऊपर होती है अरब लाइट से। लेकिन आपको अगर अभी देखें तो WTI को इस $6-7 नीचे चल रहा है अरब लाइट से। तो अगर हम WTI को देखें तो वो बेहतर क्रूड है या बोनी लाइट है, अगर हम यील्ड के हवाले से बेहतर, आप क्या कहते हैं? देखिए, आपसे सवाल पूछे कि बोनी लाइट और WTI क्रूड यील्ड के हवाले से बेहतर है, आपने ये सवाल पूछा है, अगर मैं आपकी बात सही मैंने सुनी जी हो। मतलब मैं हाँ, प्राइस के हिसाब से भी और यील्ड को दोनों को अगर कंपैरिजन करें तो बेहतर WTI है या बोनी लाइट है? देखिए, असल में जो इसकी एज फार एज दी इकोनॉमिक्स आर कंसर्न, वो तो डिपेंड करती है कि जिस वक्त हमने कॉन्ट्रैक्ट किया बाय करने का, चाहे वो बोनी लाइट हो या उसको मैं कंपेयर करूं WTI से, तो उसी वक्त मैं किसी स्टेज पे कंपेयर कर सकता हूं कि कौन बेहतर है, कौन यानी इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग। और फिर उसके बाद उसकी जो यील्ड है, जो अभी आपने सवाल पूछा, जो अभी थोड़ी देर पहले किसी और को भी MD साहब दैनी साहब ने एक्सप्लेन किया था कि बोनी लाइट के अंदर कंपोजिशन जो है वो मिडिल डिस्टिलेट्स की 50% तक आ जाती है, और उसके अंदर जो सल्फर कंटेंट है वो भी रिलेटिवली लो है। तो अभी हम चूंकि प्रोसेस कर रहे हैं, तो हमारे लिए जो इस वक्त मैं आपको ये ऐसे लेवल पे ऐसे बेसिस भी बहुत बता सकता हूँ कि बोनी लाइट इज अट्रैक्टिव। अच्छा, ये अट्रैक्टिव मैं उस हवाले से कह रहा हूँ जहां पे हम बात कर रहे हैं विद रिगार्ड टू कंपेरेबल क्रूड्स ऑफ मिडिल ईस्ट। WTI के मुताबिक मेरे पास कोई ऐसा इंफॉर्मेशन है नहीं कि वो हमारे लिए कितना सूदमंद होगा, उसका मेरे पास कोई रेडी ऐसे है नहीं, तो मैं उसका जवाब दे नहीं सकूंगा। थैंक यू। विल गो टू नेक्स्ट अहमद हसन साहब, साहब अपना सवाल कर सकते हैं। जी अच्छा, मुझे सिर्फ आपसे ये पूछना था कि आपका जो रिफाइनरी का प्रोजेक्ट था अपग्रेड और एक्सपेंशन का, उसका भी स्टेटस क्या है? पहले बात तो मैंने तय कर दी।
हेलो, कनेक्ट कर दूं कि था नहीं है, कि स्टिल माशाल्लाह वेरी मच ऑन द ट्रैक। अभी तो हमें ऐसा ही लगता है जैसे कि था। सर बताएं उसका तो क्यों लगा? स्टेटस बताएं सर, क्योंकि वो हो ही तो नहीं रहा उसका आप लोगों स्टेटस से। अभी सॉरी इमरान, एक चीज मैं आपकी इजाजत के साथ बोल दूं, जो आपको इमरान साहब कह रहे हैं आपको लगा ऐसे, आपने हमारी एनुअल रिपोर्ट जरूर पढ़ी होगी और उसके ऊपर उसका स्टेटस लिखा हुआ है, और अब लेट इमरान कंटिन्यू, वो आपको मजीद बता देंगे। लेकिन मेरा ख्याल में आप शायद आपने देश से जो है कि वी हैव जस्ट शोड अ प्रेजेंटेशन, आपकी नजर से वो प्रेजेंटेशन गुजरी थोड़ा सा? जी जी, मैं वो देख लूंगा। थोड़ा मुख्तसर बता दें आपका इसका कैपिटल आउटले क्या है और कब तक। ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ कि मैं आपकी तस्दीक कर रहा था कि आपने जब कहा कि आपका प्रोजेक्ट था, तो मैं उसकी तस्दीक कर रहा हूँ कि था नहीं, माशाल्लाह है, और इंशाल्लाह भी हम उस पर काम जो कर रहे हैं तो वी विल मेक इट अ सक्सेस। अल्हम्दुलिल्लाह हम उस पर काम कर रहे हैं, देयर हैज बीन प्रोग्रेस। अभी आपको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि हमने फीड जो फ्रंट एंड इंजीनियरिंग डिजाइन का काम था वो दिसंबर 2024 में कंप्लीट कर दिया। उसके बाद हमने आईटीबी फॉर ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स फ्लोट की, उसके जवाब में हमें ईपीसी बिड्स रिसीव हो गई हैं और उन ईपीसी बिड्स की अभी इवैल्यूएशन हो रही है। तो ये तो प्रोग्रेस हो रही है, तो था नहीं है। दिस सर इज द फर्दर ओनली क्वेश्चन फर्दर क्या है, क्या कैपिटल कमिटमेंट क्या है, और ये आपका उसके सेल टैक्स का इशू आ गया है, ये सब कब तक रिजोल्व होगा और ये आगे कब किस तरह और कब इम्प्लीमेंट होगा? देखिए सेल्स के ऊपर अगेन आप शायद मिस कर गए, थोड़ी देर पहले जाहिर साहब ने काफी, आई डोंट वांट टू रिपीट माई सेल्फ, मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप तमाम हजरात से कि वो सवालों को रिपीट ना करें, अदरवाइज टाइम हमारा नेसेसरी जो उसमें हो जाएगा। लेकिन मैं लास्ट टाइम बता देता हूँ कि सेल्स टैक्स के इशू के ऊपर काम हो रहा है, गवर्नमेंट से एंगेजमेंट चल रही है और उसको कोशिश की जाएगी। गवर्नमेंट इज अवेयर ऑफ द चैलेंज जो कि क्रिएट हो गया रिफाइनरीज के लिए पर्टिकुलरली, और 2024-25 का जो सेल्स टैक्स का इम्पैक्ट था गवर्नमेंट ने उसको रीबर्स करना भी शुरू कर दिया, हमने उसकी रीबर्समेंट शुरू हो गई है, लेकिन ये टेम्परेरी सॉल्यूशन को हम परमानेंट चाह रहे हैं सॉल्व होना। तो दिस इज द स्टेटस, एंड मेरी रिक्वेस्ट यही हुई है कि सेल्स टैक्स इशू के ऊपर सवाल अगर हमने कर लिया तो उस पर दोबारा ना करें, पहली बात के लिए। नाउ व्हेन यू सेड व्हाट इज द कैपिटल स्ट्रक्चर, अभी तो जिसका मैंने आपसे कहा फवासा के प्रोजेक्ट की ईपीसी बिड रिसीव हुई है, फाइनेंशियल क्लोज इसके बाद का स्टेज है, और इससे पहले जाहिर बात है बहुत सारे और भी मराइल हैं। हमने निगोशिएट करना है प्राइस को विद द ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर्स, ये तमाम चीजें जो है साल डेढ़ साल के अंदर जो है मटीरियलाइज होंगी। फाइनेंशियल क्लोज पाकिस्तान के गिवन सिनेरियो को रखते हुए प्रोजेक्ट की कॉस्ट को, जब व्हेन वी आर लुकिंग एट अ प्रोजेक्ट ऑफ ऑलमोस्ट $2 बिलियन, तो ये तो एक बहुत बड़ा नंबर है, और उस हवाले से फाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट भी इतनी ही हाई है, तो इसलिए एक चैलेंज है। और कैपिटल स्ट्रक्चर जाहिर बात है क्योंकि पीएसओ हमारी पेरेंट कंपनी है, तो उसकी सपोर्ट हमें मौजूद है और उसकी कमिटमेंट के बगैर हम आगे बढ़ नहीं सकते थे। तो पीएसओ की ही सपोर्ट के साथ भी प्रोजेक्ट आगे चल रहा है, एंड इंशाल्लाह वी विल कम टू द we will make the necessary announcements as we progress. Thank you. चलिए जी, थैंक यू वेरी मच। अहमद हसन साहब आप अपना सवाल कर सकते जी अस्सलाम जी, अलमीज़ान से अहमद हसन मेरा नाम है। अच्छा, मेरा सिर्फ सवाल ये था, आप ये जो अभी $5 का GRM बेसिकली कह रहे हैं, इसमें ये क्या IFEM का जो आपका सॉरी आंसर नाम देता अहमद हसन जी, कुछ और नाम बताया। अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट से अहमद हसन हूँ। अच्छा, बस मैं ये सब एक जी, क्लैरिफिकेशन चाह रहा था। आपने ये जो $5 का GRM अभी कोट किया, इसके अंदर क्या IFEM की रिइंबर्समेंट शामिल करके ये $5 है, या इसके इसको एक्सक्लूड करके हो रहा है ये? आईएफएम रिइंबर्समेंट से क्या मतलब है आपका? ये जो आपको सेल्स टैक्स के अगेंस्ट IFEM के पूल से पैसे शायद मिल रहे हैं, जो सेल्स टैक्स का जो इशू चल रहा था, तो इसके अगेंस्ट जो रिइंबर्समेंट है, ये क्या इसकी वजह से GRM बढ़ रहा है, या दिस इज एन इंटरनेशनल जो भी फिनोमेना है वो है? नहीं, देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। जीआरएम का ताल्लुक ये सेल्स टैक्स की जो आईपीएम की रिइंबर्समेंट है उससे नहीं है, वो तो पिछले साल की रिइंबर्समेंट थी ना,
तो receivable amount था. So that has got nothing to do with the GRM. पहली बात तो ये मैं clear कर दूं. इसलिए sales tax reimbursement of 2024-25 has no bearing, no impact on the GRM that we earned in first quarter 25-26. ठीक है? Right. Thank you. Thank you. Question in chat box. I think अगर आप मैं जरा कुछ हम चैट बॉक्स को भी देख लेते हैं ताकि यहाँ पे भी कुछ सवाल क्लियर होते चले जाए. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मिस्टर नायाब नादिर. प्रेजेंटेशन आइए. What percent of total utilization of local source and what is the average rate of crude oil purchase price और डेवलपमेंट ऑफ गवर्नमेंट रिफाइनिंग पॉलिसी की हम बात कर चुके हैं. एवरेज रेट ऑफ क्रूड ऑयल परचेज प्राइस जो थी हमारी तकरीबन जो पूरे साल की रही है. आप मैं आई अंडरस्टैंड के आई अज्यूम रादर कि आप शायद पिछले साल की बात कर रहे हैं. तो पिछले साल की हमारी एवरेज क्रूड प्राइस जो थी वो $75 थी. आगे जी और बाकी दो सवालों का पहले जवाब दे चुके हैं. Can you confirm the per barrel freight it takes for the refinery to in-house the crude oil? अब्दुल मोई साहब का सवाल था. तो मोई साहब इसका जवाब ये है कि हम चूंकि मिडल ईस्टर्न शोर्स से कराची लेकर आ रहे हैं तो हमारा तकरीबन जो फ्रेट इस वक्त आ रहा है वो $1.3 से $1.5 पर बैरल की रेंज में हमें पड़ रहा है आज की असेसमेंट. ठीक है जी. जयान बाबर साहब का सवाल रिपीट है. मैं डोंट वांट टू कमेंट ऑन इट. अली अकबर साहब का भी जवाब हम दे चुके हैं. उससे पहले अब्दुल वहाब साहब को व्हाट इज द एस्टिमेट कैपेक्स अंडर द अपडेट प्लान. मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था कि हमारा $1.8 to $2 million प्रोजेक्ट कॉस्ट है. जीआरएम का भी जवाब दे चुके हैं. अब्दुल बोई साहब फरमा रहे हैं एज पर माय अंडरस्टैंडिंग द रिसर्च कॉस्ट हैज नाउ कम डाउन टू 0. इज इट सो? कैन यू प्लीज शेयर द एस्टिमेटेड नंबर? मैं if I understand the question correctly, आप ये पूछना चाह रहे हैं कि जो हमने प्रोजेक्ट से रिलेटेड कॉस्ट को चार्ज आउट किया है ये उसकी बात कर रहे हैं. जवाब ये है कि जी हाँ हमने उस प्रोजेक्ट कॉस्ट को चार्ज आउट कर दिया है इन द ईयर 24-25. उसकी अब कोई मजीद इनकरिंग नहीं हो रही है. सिर्फ एक एलिमेंट जो उसकी फाइनेंसिंग से रिलेटेड है तो उस अमाउंट को हम कंटिन्यू टू चार्ज आउट करेंगे टिल द टाइम वी फाइनेंसिंग इज फुली रिपेड. चलिए प्रोक्योरिंग ये जवाब हो चुका है. ये तो दोबारा रिपीट हो रहा है. व्हाट इज द कन्वर्जन कॉस्ट पर बैरल? डॉलर बैरल. अच्छा देखिए ये कन्वर्जन कॉस्ट जो है ना मैं कोई ये आपको बता सकता हूँ कि ये वेरी करती रहती है. ज़ाहिर बात है आपको एक एलिमेंट कोई भी देयर आर वेरिएबल एंड फिक्स्ड फैक्टर्स इन द कन्वर्जन कॉस्ट. तो जो हमारा पिछला साल जो गुजरा कंप्लीट हुआ 25 उसके अंदर हमारी पर बैरल कन्वर्जन कॉस्ट वो $3.5 बैरल. ठीक है जी. एमएसए डीजल प्रोडक्शन नंबर ये आपको मिल जाएगा इन दी प्रेजेंटेशन जो हमारे जो हम अपलोड कर देंगे ऑन आवर वेबसाइट. वी विल गेट द नंबर्स फ्रॉम देयर. Please confirm inventory gain impact in $5. Please confirm inventory gain impact. That's an interesting question. आप इसको मैक्सिमम भी अगर आप करेंगे ना तो मैं $0.5 से ज्यादा नहीं समझता in the overall DRM of $5 in the first quarter maximum. Please confirm delivery charge per day. ये तो आप उनसे चेक करें. मेरे ख्याल में पीएनएससी से वो आपको ज्यादा अच्छी तरह बता सकेंगे क्योंकि वो हर एक का डिफरेंट होता है. डिपेंड करता है टैंकर टू टैंकर एंड का. तो हम तो कोशिश करते हैं कि डिलीवरी हमारे ऊपर आई. सेल्स एक्सक्यूज अमाउंट एवरेज सितंबर 30th आए ये 2.2 बिलियन रहा है. इसके ऊपर जो एज सितंबर का नंबर है ये रिसीव. Energy is used per barrel. Fine. Wow. This is over. ये अब सवाल जो है ये आप
डॉलर टर्म में पूछना चाह रहे हैं या आप मुझसे मेगाहर्ट्ज और उसकी बात करने जा रहे हैं, किलोवाट की? ये मुझे नहीं पता। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट मैंने अभी पहले बता दी है। डॉलर टर्म अच्छा, आप यहाँ से डॉलर टर्म्स बता रहे हैं। एनर्जी नहीं। अब मैक्सिमम जो डॉलर टर्म्स में आ रही है वो $1 के राउंड अबाउट आ रही है एनर्जी कॉस्ट हमारी। और लेकिन एनर्जी कॉस्ट में बहुत सारी चीजें शामिल होती हैं, गैस भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, और फ्यूल वगैरह भी जो हमें इस्तेमाल करना पड़ता है, नवर बर्नर्स, फर्नेसेस, वो सब शामिल होते हैं। इसलिए मैंने कहा आपको क्लैरिफाई कर दूं। एनर्जी रिक्वायरमेंट टोटल इन फाइनेंशियल ईयर 25 मेगावाट। हम तकरीबन हमें जो रिक्वायरमेंट आती है वो आती है 3.5 to 4 मेगावाट पर डे। तो यार मैं बेग पार्टन ये तो मैं आगे चला 2 मेगावाट पर डे तकरीबन हमारी होती है। तो आप उसको अगर 365 डेज पे रखते हैं तो दैट इज द नंबर यू विल गेट फॉर द मेगावाट। ऑपरेटिंग कॉस्ट हमने बता दिया जिससे बीइंग लेविड ऑन पीआरएस क्रूड ऑयल बोर्ड। ये एक अभी रिसेंट फिनोमेना डेवलप हुआ है और यस पीआरएल विल आल्सो बी सब्जेक्टेड टू द सेम। हम इसको डिबेट कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं पूरे इंडस्ट्री लेवल पे। इसका इम्पैक्ट है, नेगेटिव इम्पैक्ट है, एंड वी हैव टेकन इट विद आवर मिनिस्ट्री आल्सो, एंड ये इशू is a serious issue which we need to tackle. What is the duration of the company's crude oil payment cycle? 30 days users. Operating cost dollars per barrel. Please confirm again. मैंने बता दिया जनाब $3.5। मैंने आपसे कहा कि पीआरएल की ऑपरेटिंग कॉस्ट थी। आप अगर एनर्जी की बात करें उसमें तकरीबन एनर्जी वो $1 पर। मेरे ख्याल में अब हम वी गो विद ये लास्ट क्वेश्चन है तो बादशाह साहब के, क्योंकि ड्यू टू सेल्स टैक्स एग्जम्पशन दैट आर टोटल अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी रीइंबर्स्ड। व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ लॉस इनकर्ड? देखिए हमने फाइनेंशियल ईयर से सेल्स टैक्स के हवाले से कोई लॉस नहीं है, वो हमने उसको रिसीवेबल में कन्वर्ट कर दिया था। 2.2 बिलियन का नंबर था और उसके अंदर से जो वी हैव रिसीव्ड we have started receiving amounts. Almost 370 million हमको रिसीव हो गया था अभी सितंबर के अंदर। Thank you. We will now go to the questions raised and by दोबारा रेस में पहले सवाल करें एक-एक करने के बाद Abhi साहब, you have been given another chance. यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल सर ये मुझे मालूम करना था कि इस वक्त जो एलसी कंफर्मेशन चार्जेस हैं जो कि पहले एक जमाने में काफी ज्यादा हायर साइड में होते थे, अब कितने हैं? कम हो गए। यह बैंक के ऊपर हमारा डिपेंड करता है कि हाउ गुड आवर रिलेशनशिप इज विद द बैंक, और इसके साथ साथ पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हुई है। तो ओवरऑल कंफर्मेशन चार्जेस हैव सिग्निफिकेंटली कम डाउन। सर कितने हो गए? पहले जो 2%? 5%, 6% के नंबर्स थे वो सिग्निफिकेंटली कम आ गए, कम हो गए। 1 से 1.5% पे भी कंफर्मेशन का एलिमेंट आ चुका है। सही सर। और सर ये सर एक और था सर, अगर आप क्रूड ऑयल पेमेंट का पूरा साइकिल अगर बता सके कि कितने दिन का होता है, 30 डेज का होता है, 45 डेज का होता है? मैंने अभी बताया, अभी मैंने शायद आप मिस कर गया, अभी का सवाल था। मैंने कहा 30 डेज यूजर्स दिए फ्रॉम द डेट ऑफ बियर। ठीक है, ओके ओके, ठीक, थैंक यू सर। थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन मेरा ख्याल में फवाद साहब सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड से, फवाद साहब ये लास्ट क्वेश्चन है फ्रॉम योर साइड, और उसके बाद अगर मुझे चैट में भी 3-4 सवाल नजर आ रहे हैं शायद, तो हम उनको रिस्पॉन्ड करके देन वील क्लोज दिस सेशन। फवाद साहब जी, मैं अपना सवाल पूछ चुका हूँ जी, थैंक यू। Okay, thank you. Then we'll ask, look at these last questions. What is the one-time shutdown and startup cost of the? ये सवाल कुछ क्लियर नहीं है। What is the one-time shutdown and startup cost of refinery? ये सवाल कुछ वादे नहीं हो सका, इसका मकसद क्या है? Does PRL charge levy on
furnace oil to IPP. IPP. जाहिर बात है जो गवर्नमेंट ने लगा दी है, अगर IPP सबसे खरीदेंगी तो वो 82,000 प्लस 3,000 जो करंट कार्बन लेवी है, तो IPP अगर हम चलेंगे तो 85,000 रुपीज के करीब जो लग रही है वो उस पर चार्ज किया जाएगा उसको। अभी तक जब से लेवी हुआ है किसी IPP ने टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज फर्नेस ऑयल खरीदा नहीं। कंफर्मेशन चार्जेस ने बात करी, why finance cost has increased significantly despite reduction in carbon? ये किस पीरियड से रिलेटेड सवाल है? अगर ये जो जून से रिलेटेड है, जून से रिलेटेड ये सवाल क्लियर कर देंगे अभी, क्या क्लियर करते हैं या इस जून से कुछ रिलेटेड सवाल या सितंबर से, या आप अपना सवाल चैट में क्लियर कर देंगे सर, whether ये जून से रिलेटेड सवाल पे What about न्यू रिफाइनरी कॉस्ट तो हमने बता दी। न्यू रिफाइनरी कॉस्ट फिर साहब अगेन आपके सवाल जो है ना वो काफी जनरल से हो रहे हैं। पहले Q1 रिलेटेड क्वेश्चन है फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट में आपको पता होगा कि हमने स्टॉक एक्सचेंज में अनाउंसमेंट भी की थी, जो फीड बैलेंसिंग हमने ली है फ्रॉम TSO ली थी टुवर्ड्स द एंड ऑफ लास्ट ईयर, जो कि लास्ट ईयर नहीं थी, और उसमें हमने जैसे दिसंबर में फीड कंप्लीट की तो सर्टेन फीड की बैलेंसिंग लॉन्ग टर्म जो हमने बोरो किए, तो करंट ईयर में उसका फुल क्वार्टर का इम्पैक्ट है, और लास्ट ईयर कंपैरेटिव पीरियड में ये बहुत सिग्निफिकेंट नहीं थे। तो जो अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स हैं उनके इनक्रीज की वजह से ये हमारी कॉस्ट इंक्रीज। ये मैं अकील साहब के सवाल के जवाब भी दे सकूंगा, व्हाट इज द न्यू रिफाइनरी कॉस्ट? ये मैं आपको एक नंबर दे दूंगा जो कि, क्योंकि आप अगर डीप कन्वर्जन रिफाइनरी की बात कर रहे हैं, किस कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, देयर आर टू मेनी मूविंग पार्ट्स टू इट, तो आई एम सॉरी ये सवाल जवाब हमसे हो नहीं सकेगा। Since there are no other questions, I think we can close the session. हाँ मेरे ख्याल में कोई और Thank you very much. कोई नहीं सर, Thank you very much. much. Recording stopped.